Hello students, here we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. So that's why students I have drawn a longitudinal section of a flower. First of all I want to say to you about a little related to the flower. Students, actually angiosperms are the highest division of the kingdom Plantae. So here all the angiospermic plants bear the flower, which is the reproductive part. So student, keep in mind that what actually flower is. Student, flower is the reproductive part. It means reproduction be there in a flower. So as you know that as a being individual or the organism, two sexes are there, one is male and second one is female. So if a single sex is there in an individual, the individual may be called as unisexual, and if both the sexes are present in a single individual, so individual may known as bisexual, as it may have both of the sex, one is male and second one is female. So here you could see that I have drawn the structure of a longitudinal section of flower which has both the parts, one is male and second one is female. So male part of the flower may consist of anther and filament. So anther and filament combinedly called stamens, which are the male reproductive parts in a flower. Instead, stigma, style and ovary combines together to form the pistil, which is the female reproductive part. Student, these unique parts are there which may have the unique functioning also in a flower. So keep in mind that what essential functioning be there for each of these organs which are the part of a flower. Student, I am telling you about the functioning of all the organs which are associated to the structure of a flower. Here you could see that anther is there. One more thing before explaining you about the functioning of the essential organs which are the part of this flower, I want to tell you that if a flower have only the anther and filament, I mean stamen, if stamen be there, it can be possible. It can be seen in papaya, which is the unisexual flower, or date palm is also another example where you could see only single sex in a flower. So what I am telling to you is that if only single sex, I mean anther or filament be there, it means stamen is there, the flower is called staminate. What I am saying, staminate flower. Staminate flower may have only anther and filament. Staminate flowers doesn't have the stigma, style and ovary, which is the female reproductive part. Instead, if a flower which may have only pistil, which consists of stigma, style and ovary, so flower will called pistillate flower. Student, staminate and pistillate, अगर आपको कहीं पूछा जाता है या कहीं आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस स्टैमिनेट की क्या की बात की जा रही है और पिस्टिलेट की बात की जा रही है. और यहाँ पे दो और ऑर्गन्स आप देख रहे हैं, पेटल और सेपल. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये एसेसरी पार्ट्स कह सकते हैं, सहायक होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं. स्टूडेंट्स आपने देखे हैं पेटल्स के कलर, अगर हम रोज़ की बात करें बहुत ही सुंदर पिगमेंट्स होते हैं उसमें, जिससे जो पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेटर्स कुड बी बायोटिक और एबायोटिक. अगर हम बायोटिक पॉलिनेटर्स की बात करें तो कॉमनली हमने बटरफ्लाई, इंसेक्ट, बीज या आंट्स को देखा होगा फ्लावर के जो सेंटर में. क्यों सेंटर में? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेक्टर रिलीज़ करता है प्लांट, और वो नेक्टर रिच इन स्टार्च होता है या यूँ कहें कि रिच इन शुगर होता है. तो यहाँ पे इंसेक्ट उस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आते हैं, और पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे होंगे बच्चों? एंथर में. यहाँ पे ये मदर बॉडी होगी जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे.
तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, और जब ये एंथर बर्स्ट करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे, और वो पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेटर्स की मदद से, या जो जिन एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट्स की बात हम कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गई, तो इनके द्वारा भी पॉलिनेशन होता है किन्हीं किन्हीं फ्लावर्स में। लेकिन मोस्टली बायोटिक कंपोनेंट्स बीज के द्वारा होता है, मक्खियों के द्वारा या मधुमक्खियों के द्वारा, जिनको हमने लगातार फूल के आसपास नेक्टर को कलेक्ट करते हुए देखा होगा। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये एसेसरी पार्ट्स हैं। एसेसरी पार्ट पॉलिनेशन में मदद करते हैं फ्लावर में, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सब फंक्शनिंग्स देख लेते हैं किस तरीके से है। स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? 4 पार्ट बेसिकली, जिनको 4 डिफरेंट होल्स भी आप कहते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस और कार्पेल, जिनमें सेपल और पेटल्स एसेसरी पार्ट हैं। इनका काम क्या है? अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये एसेसरी पार्ट्स हैं, यानी रिप्रोडक्शन में ये भाग नहीं लेते, ये मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं, स्टैमेन, अभी हमने आपको स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर के बारे में आपको मैंने बताया। तो स्टैमेन और कार्पेल, स्टैमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आगे देखते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी फ्लावर। दी फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि सिंगल सेक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने पपाया, वाटरमेलन आपको बताया। तो यहाँ पे जो फ्लावर हैं, उन फ्लावर्स में मेल या सिंगल फ्लावर में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। व्हेन इट कंटेन्स इधर स्टैमेंस और कार्पेल्स, तो वहाँ पे फ्लावर्स में या तो सिर्फ स्टैमेन होगा और या फिर कार्पेल होगा। स्टैमेन होगा तो फ्लावर को क्या कहेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे, और अगर कार्पेल है तो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। या फिर दोनों होंगे, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। बाइसेक्सुअल यानी बोथ ऑफ द सेक्स, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टैमेंस एंड कार्पेल, अगर स्टैमेन कार्पेल दोनों हैं। हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो बाइसेक्सुअल इन नेचर हैं। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्टैमेन है या एंथर है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल कह लीजिए आप। उन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या है? कार्पेल। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कहाँ होता है? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में। कार्पेल्स में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों का काम, स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, ये पॉलेंस को स्टिक कर लेता है। अगर कोई बी के द्वारा या कोई पॉलिनेटर एजेंट्स के द्वारा पॉलन यहाँ आता है तो ये पॉलन यहाँ पे स्टिक हो जाता है, ठीक है। और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, फिर पॉलन उसके ऊपर ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? पॉलन ट्यूब। एक ट्यूब यहाँ से ग्रो होती है और वो ट्यूब नीचे, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट है जिसमें से पॉलन ट्यूब आती है, और सबसे बेसल पार्ट जो थोड़ा सा स्वालन होता है, इसमें ओव्यूल होता है जिसको ओवरी कहते हैं। और हर एक ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होती है बच्चों, यहाँ पे मैंने लेबल किया है एग सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, नीचे सिनर्जिड्स हैं। डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन देख लीजिए क्या है। फ्यूज़न ऑफ मेल जर्म सेल्स, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल। तो पॉलन ग्रेन्स का एग सेल से फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। हम पहले जानते हैं, हमने आपको इससे पहले भी बताया है, जब 2 सेक्स सेल्स फ्यूज़ करती हैं तो क्या बनता है? जायगोट। जायगोट क्या डेवलप करता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है, जिससे नया प्लांट बनता है। अभी ऊपर हमने बात की थी स्टिग्मा की। स्टिग्मा क्या रोल होता है? स्टिकी पार्ट होता है, पॉलिनेशन का काम करता है। तो थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है पॉलिनेशन।
एक्चुअली पॉलिनेशन इज द प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टैमेन टू द स्टिग्मा। स्टैमेन जहाँ पे वो प्रोड्यूस होंगे और वहाँ से स्टिग्मा पर उनका ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। किसके द्वारा होता है? पॉलिनेटर्स के द्वारा होता है। क्या होते हैं वो पॉलिनेटर्स? पॉलिनेटर्स आपके बायोटिक भी हो सकते। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉलिनेटर जो लिखे हैं, सबसे पहले ये तो एबायोटिक हैं और फिर मैंने लिखा है एनिमल जो कि बायोटिक पॉलिनेटर है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बीज का, बटरफ्लाई का, इंसेक्ट्स का आप ले सकते हैं। और विंड और वाटर ये एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं। अब ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस हो गई, ये भी 2 प्रकार की होती है बच्चों। क्या 2 प्रकार? सेल्फ पॉलिनेशन, अगर पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है सेम फ्लावर में हो रहा है, यानी कि आप अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों सेक्स मेल और फीमेल हैं, तो अगर एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर हम पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये 2 तरीके के पॉलिनेशंस। अब पॉलिनेशन हो जाने के बाद क्या हो गया? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन चुका होगा और ये जायगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा ओव्यूल के अंदर ही, ठीक है। और ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल था, तो ओवरी ग्रो करके राइपेंस या पक जाएगी और ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। बहुत ही ध्यान में रखिएगा, ओवरी जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी और ओव्यूल में जो एग से फ्यूज़ करके जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ओव्यूल डेवलप्स टू सीड एंड ओवरी डेवलप्स टू फ्रूट। तो यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट कंप्लीट होता है और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। तो वहाँ पे क्या एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में हम सीखेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। जी हाँ बच्चों, हमें बात करनी है जर्मिनेशन से संबंधित। सीड का फॉर्मेशन हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगा, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। हर एक फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स डेवलप इनटू सीडलिंग्स, छोटे छोटे पौधों के रूप में सीड डेवलप करते हैं। कब डेवलप करते हैं? अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब उन सीड्स को अगर हम बॉक्स में रख दें जहाँ पे मॉइस्चर या एयर ना हो तो वहाँ पे वो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। इसलिए सीड जर्मिनेशन के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर होने चाहिए और उस कंडीशंस पे सीड जर्मिनेट करेंगे, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं या सीड जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन्स हैं। आपने क्लास 9th में मोनोकॉट, डाइकॉट के बारे में पढ़ा होगा। मोनोकॉट जहाँ पे सिंगल सीड लीफ और डाइकॉट, ये वैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो डाइकॉटिलेडन है। यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स हैं। कॉटिलेडन क्या होते हैं? ये रिजर्व फूड इनके अंदर स्टोर होता है जो कि मदद करता है किसी भी सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। बच्चों, कोई भी सीड सॉइल में डालते ही वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको जर्मिनेट होना होता है पहले, और जर्मिनेशन के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो उस टाइम वो एनर्जी कॉटिलेडन में स्टोर्ड रिजर्व फूड से उसको प्राप्त होती है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल फ्यूचर सूट यानी कि द पार्ट विच में बी अबव द अर्थ और द पार्ट विच में बी बिलो द अर्थ विच इज could be called as future root developed by the radical। तो 2 स्ट्रक्चर, पहला प्लूम्यूल और दूसरा रेडिकल। प्लूम्यूल फ्यूचर सूट का फॉर्मेशन करता है और रेडिकल फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे कॉटिलेडन जो होते हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो भी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं आप बच्चे हमसे पूछ सकते हैं और आप इसी से आप अपना नोट्स तैयार करेंगे।